हेलो, वेलकम टू अल्केमिस्ट द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हमारे 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं हमने। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन एंड इट इज ऑल्सो फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द केमिकल बॉन्डिंग सो कम टू अवर प्लेटफॉर्म एंड सॉल्व योर क्वेश्चन विथ अस, राइट। तो ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, द कैरेक्टर ऑफ ल्यूमो ऑफ Cn माइनस एंड O2 रिस्पेक्टिवली आर। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा ल्यूमो फाइंड आउट करना है, right? We have to find out our LUMO for Cn minus and O2 molecule, right? So how we can find out our LUMO? तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, we must have to know what is the molecular orbital diagram for our two molecule Cn minus और O2 minus के लिए हमारा MO डायग्राम क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए, right? So first we have to draw our molecular orbital diagram and उसके हिसाब से हम अपना LUMO क्या है वो पता कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट आवर मॉलिक्यूल इज Cn माइनस, राइट। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट what we can do, first we have to write down the electronic configuration which is 1s2 2s2 and 2p2, and for nitrogen it is 1s2 2s2 and 2p3, right. So here is our carbon and here is our nitrogen, right. So our molecular orbital is like this. Here is your first sigma zeroed, this is your first sigma star unzeroed, this is your bonding molecular orbital and this is your anti-bonding molecular orbital, right. This is 1s, this is the 1s of नाइट्रोजन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल होगी, और एटॉमिक ऑर्बिटल जब लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का जो 3 रूल्स है उस हिसाब से कॉम्बिनेशन करेंगी तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होंगे, राइट। तो यू मस्ट हैव टू नो हाउ टू ड्रॉ द molecular orbital diagram, right. So here is your 2s, here is your 2s. So यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 sigma zeroed, this is your 2 sigma star unzeroed, right. So यहाँ पे आपको सबसे important portion जो है वो आपका 2p orbital है, 2p orbital है। यहाँ पे आपको याद रखना होगा that your molecule follows the symmetrical pattern or unsymmetrical pattern, right. So you know that from B2 to N2 your molecule will follow the unsymmetrical pattern, right. So for Cn, how can you determine what pattern it will follow? So for that you have to calculate the total number of electron. What is the total number of electron in Cn minus is 6 plus 7 and there is one additional electron is here, so total number of electron is 14, right. And we know that if the total number of electron is equal to or less than 14, is equal to or less than 14, then it will follow the unsymmetrical pattern, right. And in unsymmetrical pattern your pi mo molecular orbital will come first and then your sigma molecular orbital will come, राइट। और ऊपर का जो ये पोर्शन है वो तो सबके लिए सेम ही आता है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोर्शन हो गया वो ये आपका नीचे वाला हो गया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इतना ही याद रख के बैठे हो तो यहाँ पे आपका कैसे निकालोगे वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 14 और लेस देन 14 देन यू मस्ट हैव टू follow the unsymmetrical pattern, right. So now we can fill up the electron here in carbon 1s2 2s2 and 2p2, and for nitrogen 1s2 2s2 and 2p3, right. So by the combination of two atomic orbitals we form the molecular orbital। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है तो 1 2 3 4 यहाँ पे भी ऐसे फिलअप कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 plus 3 5 and there is one additional electron is here, so total number of electron is 6। तो यहाँ पे कैसे फिलअप होंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि दोनों क्या है सेम एनर्जी लेवल में है। एंड वी नो दैट इफ द टू molecular orbital is the same energy level then your electron will be fill up one after another and with the same spin, right। तो यहाँ पे आपकी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ओके। then your second electron and then your fourth electron,
अभी और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्बिटल है उसका नोटेशन क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1 पाई अनजीरेड, ये आपका हो जाएगा 1 पाई अनजीरेड। ये आपका क्या आ जाएगा 3 सिग्मा जीरेड। यहाँ पे आपका आएगा 1 पाई स्टार जीरेड, ये आपका आ जाएगा 1 पाई स्टार जीरेड, और ये आपका आएगा 3 सिग्मा unzero, right? 3 sigma unzero. So what we have to find out is our LUMO. तो LUMO कौन सा होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा आ रहा है, ये जो है वो हमारा LUMO होगा, राइट। यहाँ पे ये हमारा LUMO होगा। और होमो क्या है वो भी पता होना चाहिए। होमो का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला जो है वो हमारा होमो हो जाएगा, होमो हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ल्यूमो करना है। तो ल्यूमो जो है वो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, पाई जीरेड, राइट। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में अगर देखोगे तो स्टार नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये जो जीरेड और अनजीरेड है उससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है या एंटी बॉन्डिंग। आपको पता है कि जब भी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और वहां पे जीरेड आएगा, देन इट इज योर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो वहां पे आपका अनजीरेड ही आएगा, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरेड एंड अनजीरेड एंड हाउ टू आइडेंटिफाई योर जीरेड और अनजीरेड। अगर आपको ये नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, हमारा डायटोमिक टर्म सिंबल निकालने वाला डिटेल वीडियो जो है वो आप देखिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा हाउ टू डिटरमाइन योर जीरेड एंड अनजीरेड, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट सी एन के लिए था, ल्यूमो क्या आ गया, पाई जीरेड, राइट, पाई जीरेड। तो पहला हमें पता चल गया हमारा सी एन माइनस के लिए। सेकेंड जो है हमारा O2 मॉलिक्यूल के लिए, राइट, O2 मॉलिक्यूल के लिए। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे भी हमारा दूसरे ऑक्सीजन का भी 1s2 2s2 2p4, राइट। तो दोनों एटम्स को यहाँ पे लिख देते हैं, ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 2s से, क्योंकि 1s तो जो है वो सब में कॉमन ही आएगा। तो ये हमारा 2s का मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया, राइट। ये हमारा 2p के लिए, तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा हमारा 2 सिग्मा जीरेड, और ये आएगा 2 सिग्मा स्टार अनजीरेड, राइट। सो यहाँ पे हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, तो हमें पता है आफ्टर N2 योर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो द सिमेट्रिकल पैटर्न, और इन द सिमेट्रिकल पैटर्न योर sigma molecular orbital will come first and then your pi molecular orbital will come, राइट। और ऊपर का जो पोर्शन है वो तो सब में सेम ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1s 2s 2p, 1s 2s और 2p। इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर देते हैं, हम डायरेक्ट 2s से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p 4 1 2 3 4, 1s2 2s2 2p 1 2 3 और 4, राइट। तो ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया सबका। अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं, यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये आपका 7 और यहाँ पे 8, राइट। तो यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, ये आपका 3 सिग्मा जीरेड, ये आपका हो जाएगा 1 पाई अनजीरेड, ये आपका 1 पाई अनजीरेड, राइट। यहाँ पे आपका होगा 1 पाई स्टार जीरेड, ये आपका होगा 1 पाई स्टार जीरेड, और ये जो है आपका वो आ जाएगा 3 सिग्मा स्टार अनजीरेड, राइट। तो यहाँ पे भी हमें क्या पता करना है, ल्यूमो। तो ल्यूमो क्या होगा आपका, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ये आपका हो जाएगा ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपका होमो कौन सा होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये आपका हो जाएगा होमो। तो यहाँ पे आपका होमो क्या निकलता है, ये आपका निकलता है पाई जीरेड, और आपका ल्यूमो क्या निकलता है, ल्यूमो आपका निकलता है सिग्मा अनजीरेड। तो दिस इज वेरी इजी टू फाइंड आउट योर होमो एंड ल्यूमो इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से आप अपना जो आंसर है वो निकाल पाओगे। तो हमारा यहाँ पे ल्यूमो क्या आया, सिग्मा अनजीरेड, राइट। तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आया, सिग्मा अनजीरेड। तो फाइंड आउट द ऑप्शन,
तो पहले में क्या था सिग्मा जीरेड, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे पाई अनजीरेड, तो हमारा तो पाई जीरेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है पाई जीरेड, तो ये सही है। ये आपका आ गया सिग्मा अनजीरेड, तो ये भी सही है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, ये आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको अगर आंसर पता भी है, देन जब आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको श्योरिटी देखना होगा, हर एक ऑप्शन को अच्छे से टटोल लो, गलत नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपने पूरा क्वेश्चन सही से सॉल्व किया और लास्ट में जल्दबाजी में आप गलती कर बैठोगे, तो ये आपको नहीं करना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर क्वेश्चंस एंड योर ऑप्शंस ऑल्सो व्हेन यू आर मार्किंग योर आंसर, राइट। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए।